Good evening, everyone. So we are back in live again with your Emerge batch. And today the chapter that we are going to take up is a very new chapter, and that is going to be your genetics chapter, and that is called as Principle of Inheritance and Variation. All right. तो ये जो चैप्टर है आपका which is Principles of Inheritance and Variation, इसके बारे में थोड़ा आपको already idea hoga in your previous classes that you have already come through and but यहाँ पर हम जिसके बारे में स्टडी करने वाले वो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगी चीजें टॉपिक्स will go into a little bit of more detailed sections and नए नए टॉपिक्स भी इसमें add up किए हुए हैं. All right, so let's start our session now and इसमें हम we will see that today basically we will be studying about some of the basics things. जो कुछ basics हैं उसके बारे में हम जानेंगे and उसके बारे में भी हम study करेंगे. All right, so regarding the word which is principles of inheritance and variation, ठीक है, ये जो दो word आपको दिख रहे हैं that what is inheritance and what is variation, इसके बारे में भी हम deal करेंगे. But before going to this word actually, we will first come into that that some of the questions which has been asked over here. Like for example, it has been written that have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some any other animal? All right. Or why a mango seed forms only a mango plant and not any other plant wo kyun nahi banata? Now given to do that, the offsprings are identical to their parent or they show differences in some of their characteristics. All right. Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? तो मतलब questions ऐसे put up हुए हैं that why the siblings they look similar to one another or why the siblings they look quite different from one another. So that is the case. Now, these are the several related questions that are dealt with scientifically in a branch of biology which is known as genetics. All right. So ये जो chapter जिस branch of biology में आता है उसको हम consider करते हैं as genetics. All right. So this is basically a branch of biology that deals with heredity and variation, you can say. So this is a branch of biology. All right, that deals with heredity, you can say, or inheritance, or variation, you can say. तो ये हो जाए. तो ये जितना भी टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं, this will all come under a very important branch of biology and that is called as genetics. All right. So this subject basically deals with the inheritance as well as the variation of characters from parents to the offsprings. ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया कि ये inheritance और variation से deal करता है, that how the parents are different from their offspring, or rather I'll say that how the offsprings are different from their parent. Now, inheritance is the process by which the characters are passed on from parents to the progeny, and that inheritance is considered to be as the basics of heredity. That forms the basis of heredity. So as the word is suggesting, anything which is passed on, that is called inheritance. So how we are going to define inheritance? Inheritance का मतलब हो जाएगा to pass on something or to pass the character. So to pass character, ये जो कैरेक्टर होता है ये जेनेटिकल भी हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है कैरेक्टर. मोस्टली इट इज जेनेटिकल व्हिच इज बीइंग पास्ड, तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो टू पास कैरेक्टर फ्रॉम वन generation
to next. So this is the case. So कहीं ना कहीं heredity जो है वो इसका basis बना हुआ है. So heredity comes actually under inheritance. Now variations is the degree by which the progeny differs from their parents. Now how we are going to define variations? Variations अब क्या होते हैं? Variation का मतलब होता है changes. Simple language में अगर बोलूं, so ये क्या होते हैं? ये changes को represent करते हैं. So this basically represents changes. So variations means the degree of change, you can say, or the degree of difference that the progeny or the offspring is different from their parent. That is called as variation, which has been written over here. ठीक है? तो ये जो change होगा और change किसमें होता है? This change basically occurs from parents to offsprings. You can say. Simple language. Clear? ये होता है. So humans knew that as early as 8000 to 1000 BC, that one of the cause of variation was hidden in the sexual reproduction. Definitely. अभी हम लोग जो sexual reproduction का जो पूरा process पढ़े, all right, चाहे human reproduction अगर हम लोगों ने study किया, तो उसमें we have seen a lot of things कि ये जो variation का जो main cause होता है, the main cause of this variation is basically considered to be as your sexual reproduction. This is considered to be sexual reproduction. क्योंकि asexual reproduction से तो identical offsprings बनेंगे, तो उसमें तो variations कोई create ही नहीं होना है ना? So that is the case. तो ये जो sexual reproduction का process है, और इसके बारे में हमें पता कब चला था? इसके बारे में हमें कुछ पता चला था कुछ 8000 to 1000 before Christ, मतलब BC के पहले हमें ये मालूम चला कि ऐसा मतलब कुछ process होता है. Reproduction में भी 2 aggregations होते हैं, 2 segregations होते हैं. That means you're sexual and asexual, and that's how the things went into flow. ठीक है? Now, तब से they exploited the variations that were naturally present in the wild populations of plants and animals to selectively breed and select for organisms that are possess desirable characteristics. For example, through artificial selection and domestication from the ancestral generation. See, इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें यही बताया गया है कि ये जो sexual reproduction which is actually responsible for variation, क्योंकि variations के लिए responsible है, ये पहले तो natural होता था, ठीक है? अब natural जब ये देखा गया कि natural variation is very good for human population, है ना? क्योंकि उसमें gene mixing होती है, उसमें different तरीके के offsprings बनते हैं with different new characteristics बनते हैं. तो फिर ह्यूमंस ने क्या किया ना, ह्यूमंस ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉइटेशन? एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि ह्यूमंस ने उसको अपने तरीके से इनकलकेट करने की कोशिश की. दे ट्राई टू आर्टिफिशियली डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है? तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये वेरिएशंस नेचुरली भी हुआ, और ये वेरिएशंस को क्रिएट करने वाले अगर ह्यूमंस आए तो ह्यूमंस इसको आर्टिफिशियल भी बना दी. तो दोनों चीजें आ गई. तो वही चीज यहाँ पे आपका मेंशन्ड हुआ है that now these variations they are natural also and these variations now artificial also. क्यों? क्योंकि जब से इसमें humans का involvement हो गया तो वो artificial domestication को शुरू करना start कर दी. So this is the case. ठीक है? ये वाला बात हो जाए ना. Moving ahead. तो इससे हमें भाई ये पता चला basically कि तो ये जो वाइल्ड काउज हो गया, वी हैव ऑल नोन दैट इंडियन, दीज आर ऑल द इंडियन ब्रीड. एग्जांपल जैसे कि साहिवाल काउज इन द पंजाब को अगर हम ले लें, ठीक है? वी मस्ट हाउएवर recognize that though our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had very little idea about the scientific basis of this phenomena. तो कहने का मतलब ये है कि उनको ये मालूम था कि वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, जीन मिक्सिंग होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, बट एंसेस्टर्स जो थे ना हमारे, जो हमारे पूर्वज थे, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे,
they had very less idea about any of the genetical basis या scientifical basis कि exactly ये हो कैसे रहा है. Variations हो रहा है उनको ये मालूम है, लेकिन variations हो कैसे रहा है, exactly what is the main process, procedure, scientific phenomena क्या है, scientific basis क्या है, that was completely unclear. तो ये वाला वो part हो जाएगा. ठीक है. तो this was just a brief idea about some of the basic things, मतलब inheritance, variation, heredity, इन सब के बारे में. Now let us come directly into the great scientist and जिसके बारे में हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, and that too about the Mendel's law of inheritance, which you can see over here. ठीक है. अब जब हम Mendel law of inheritance की बात करते हैं, ठीक है, so there is Mendel's laws of इनहेरिटेंस. ठीक है. तो मेंडल का जो पूरा नाम है, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज ग्रिगोर जॉन मेंडल. इनको जी.जे. मेंडल शॉर्ट में बोलते हैं, बट इनका जो पूरा नाम है दैट इज ग्रिगोर जॉन मेंडल, who is also considered to be as the father of genetics. So he is the only one who gave an idea, who proposed an idea कि inheritance करके भी कोई चीज होती है, variation करके भी कोई चीज होती है, और genes, alleles, मतलब एक deep section में जा करके study करना, chromosome के level पर जा करके study करना, that was the prime importance and prime suspect of this scientist. So that's why he's considered to be as the father of genetics. इसीलिए हम इनको father of genetics consider that. ठीक है. So it was actually during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. So ये जो inheritance का जो understanding शुरू हुआ था, वो कुछ 19th century में it started. Can say mid 19th century में ये शुरू हुआ था बात. And Gregor Mendel, यहाँ पूरा नाम नहीं mention है, but I have mentioned over here. So Gregor John Mendel actually conducted hybridization experiment on garden peas for around 7 years. ठीक है. So this Gregor John Mendel, इनका contribution कैसे start हुआ था कि he was an Austrian monk, है ना. इनका अगर आप पढ़ोगे, जब आप history इनका देखोगे, so he was actually an Austrian monk, लेकिन इनको plantation का बहुत ज़्यादा शौक था. He was very fond of plantation and gardening and all those things. तो उसी पर्पस से ना इनका जो experiment, जो first set of experiment इन्होंने explain किया था, that was called as the hybridization experiment. That was called as the hybridization experiment. क्लियर. और ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने जिस प्लांट को सिलेक्ट किया था, ठीक है, द प्लांट दैट वाज सिलेक्टेड, दैट प्लांट इज अ very कॉमन प्लांट दैट इज कॉल्ड पी प्लांट. एंड पी इज कॉल्ड, द साइंटिफिक नेम ऑफ पी इज पाइसम सटाइवा. This is the genus and this is the species name. ठीक है. तो इन्होंने ये कुछ जो हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था इस पाइसम सटाइवम में, this went for around 7 years. ये कुछ 7 सालों के लिए पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था. That ranged from 1856 to 1863 and proposed the laws of inheritance in the living organisms. Now, during the Mendel's investigations into the inheritance pattern, जब इन्होंने investigation करना शुरू किया, उसके बारे में और जानना शुरू किया, so it was actually for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to solve the problems in biology. तो जब इन्होंने थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश की, मतलब उसमें डीपर जाके रिसर्च करना शुरू किया ना, तब फिर बाद में ये चीज समझ में आया कि बायोलॉजी में भी कहीं ना कहीं हम मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, एनालिटिकल एप्लीकेशंस, लॉजिकल एप्लीकेशंस हम अप्लाई
कर सकते हैं. So his experiments, that's why, had a large sampling size. क्योंकि जब कोई भी चीज एनालिटिकल प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसका जो रेंज होता है वो काफी बढ़ जाता है. ठीक है. So that's why his experiments had a large sampling size, which gave greater credibility to the data that he actually had collected. ठीक है. Now also the confirmation of his inferences मतलब क्या, sources, उनके sources क्या थे, उनके results क्या थे. So also the confirmation of his inferences from the experiments on successive generations of his tested plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. देखो इन्होंने जो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ना, दिस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, तो इनका लॉ बिल्कुल सही था. इट वाजंट प्रूव्ड रॉन्ग एट दैट टाइम, बट द ओनली थिंग वाज कि जो इनके रिजल्ट्स आए थे उनका वो प्रूफ क्या है. सो द प्रूफ वाज एक्चुअली लैकिंग इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. क्वेश्चन यही उठा कि where are the inferences, where are the proof, what is the proof कि तुमने जो किया है इनको, क्योंकि उस टाइम पे और भी कई सारे साइंटिस्ट वगैरह थे, तो इनको फिर वही क्वेश्चन किया जाने लगा that what is the exactly proof कि तुमने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है that is correct, वही सारे प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, अगर हम किसी और प्लांट पे करेंगे तो वो डेविएट नहीं होगा. मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे पुट अप होना शुरू हो गए. सो दैट वाज द केस. All right. So Mendel, that's why, investigated characters in the garden pea. तो उन्होंने क्या किया उसके लिए? He started investigating the characters in the garden pea. And pea plant पे that were manifested as two opposite traits, that is tall and dwarf plants, yellow or green seeds. This allowed him to set a basic framework of rules governing the inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity that inherited in them. So basically इस proof को फिर देने के लिए, इस hybridization experiments के proof को देने के लिए he selected, that means this Mendel selected contrasting characters, you can say. So he basically selected all the contrasting characters in pea plant. So pea plant के कुछ contrasting characters को इन्होंने select करना शुरू किया, और उसके बेस contrasting का मतलब हो जाएगा opposing character. Remember, contrasting means opposing characters. तो ऑपोजिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट करना शुरू किया था, टू इन ऑर्डर टू गिव दिस साइंटिफिकल प्रूफ, यू कैन से. ठीक है. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. अब हम आगे अगर बढ़े, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी दैट व्हाट वर द कैरेक्टर्स दैट वर टेकन. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका मेंशन भी है, बट लेट अस जस्ट टेक अ लुक इनटू द डिफरेंट कैरेक्टर्स एक्चुअली. ठीक है. यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. So Mendel actually conducted, you can see that Mendel conducted such artificial pollination or cross-pollination experiments using several true breeding pea lines. Now, what do you mean by true breeding pea lines? True breeding का मतलब हो जाएगा, true breeding pea lines का मतलब हो जाएगा that any character, समझ लीजिए कि कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि एक 1 to several generations में, from one generation to another generation repeat हो रहा है, that is called as true breeding. इसीलिए उसको true breeding बोला जाता है. So the characters which are, or the alleles, or you can say the gene which is being inherited from one generation to the another generation repeatedly. ठीक है. So a character or gene, you can say, passing from one generation to
to next repeatedly. तो ऐसे केस में जनरली ये होता है ना, repeatedly. ऑलराइट, सो ऐसे केस में ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स जो होते हैं ना, ये प्योरी लाइन्स को इंडिकेट करते हैं. प्योरी लाइन्स, प्योरी लाइन्स को ये इंडिकेट करते हैं. ठीक है. सो अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज दैट वन हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. जैसे मैंने बोला ना कि कोई एक कैरेक्टर जो कि कई जनरेशन से पास ऑन हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सेल्फ पॉलिनेशन से हो सकता है, और इसलिए इनको हम प्योरी लाइन्स कंसिडर करते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज सेल्फ पॉलिनेटेड. That's why this is self-pollinated. So having undergone continuous self-pollination, showing the stable trait inheritance expressions for several generations. मतलब वही कैरेक्टर या जो ट्रेट होगा वो कई generations तक पास ऑन होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. ठीक है. Now मेंडल ने सिलेक्ट किया था 14 true breeding pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with the contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seeds, yellow or green seeds, inflated or constricted, green or yellow pods, tall or dwarf plants. Now, let me tell you one thing. यहाँ पे आपको एक terminology सुनने को मिल रहा होगा बार बार, and that is called trait. Trait is nothing. It is another synonym of character. It's a synonym of character. तो कहीं भी अगर आपको ये वर्ड नजर आए ट्रेट, सो दिस बेसिकली मीन्स कैरेक्टर, अ सिनोनिम ऑफ कैरेक्टर. रिमेंबर, ये ध्यान में रखिएगा बिकॉज दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वाला हो जाएगा. नाउ लेट अस टेक अ लुक इनटू द डिफरेंट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स दैट मेंडल हैज एक्चुअली चोज फॉर कैरिंग आउट द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. ऑलराइट, so you can see on your left side of your this right side of your screen basically कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे आपका देखिए द फर्स्ट कैरेक्टर वो सीड का शेप था. यहाँ पे आपको दो टर्मिनोलॉजीज नजर आ रहे हैं. दैट इज, एक तो डोमिनेंट ट्रेट है और दूसरा आपका रेसेसिव ट्रेट है. ठीक है. तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं दैट व्हाट डू यू, ट्रेट मालूम है, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर हो गया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट और व्हाट डू यू मीन बाय रेसेसिव. तो ट्रेट जो होता है बेसिकली genetics में, this trait or character, it can be either dominant or it can be either recessive. या तो dominant होगा और या तो ये recessive होता है. Now dominant character का, dominant as the word is suggesting कि ये dominance होगा. ठीक है. So a character which is usually expressed, जिसका expression generation to generation होता चला जाएगा, that is called as a dominant character. So it's a character which is expressed. So a character which is expressed. Which is expressed in generations. Especially your F1 generation, F2 generations, इन सब में इनका expression होगा. ठीक है. While रेसेसिव का मतलब हो जाएगा कि वो कैरेक्टर जो कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. क्योंकि हम लोग बोले ना कि हम लोग ऑपोजिंग कैरेक्टर लेंगे, तो अगर कोई एक्सप्रेस होगा तो दूसरा सप्रेस भी होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड रेसेसिव. सो दिस इज अ कैरेक्टर व्हिच इज यूजुअली सप्रेस्ड. सो अ कैरेक्टर व्हिच इज suppressed, or you can say not expressed in generations. ठीक है. तो इसको हम रेसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे. डोमिनेंट जो कैरेक्टर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर, इट कैन आइदर बी होमोजाइगस और इट कैन आइदर बी हेट्रोजाइगस. ठीक है. तो या तो ये होमोजाइगस हो सकता है और इट कैन बी हेट्रोजाइगस.
नाउ होमोजाइगस मींस व्हाट? होमोजाइगस का मतलब होता है कि जब जो पेयर होते हैं जीन्स के, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में भी बताऊंगी, बट अभी के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैरेक्टर्स क्या क्या लिए थे। लेट अस टेक दिस इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें वो वर्ड्स आपको समझ में आएंगे when we will be talking about genotype and phenotype तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर में राउंड ले लिया, रिंकल्ड हो गया। तो सीड का शेप जब लिया था बेसिकली, तो सीड के शेप में डोमिनेंट ट्रेट इज राउंड एंड द रिसेसिव ट्रेट इज रिंकल्ड। सीड का कलर लिया तो इट इज येलो एंड इन केस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, एंड रिसेसिव के केस में ग्रीन हो गया। कलर ऑफ द सीड आई एम टॉकिंग अबाउट, जो पी का सीड का कलर है। फ्लावर कलर में हो जाएगा वायलेट एंड देन वाइट, देन डोमिनेंट वायलेट हो गया, रिसेसिव वाइट हो गया। पॉड का शेप, पॉड का मतलब जो पी का जो छिलका होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज इट्स that is its covering, you can say. So it can be either full or it can be either constricted. Then pod color will be green and yellow. Then what about the flower position? Flower position can either be axial. Axial का मतलब होता है कि branches में होंगे, and terminal, that will be the dominant trait ना, and terminal होगा, terminal का मतलब टिप पर, ठीक है, वो recessive trait हो जाएगा। Stem का height जब हम देखते हैं तो it can be either tall or it can be either low. So these were the 7 different types of contrasting traits. Remember, Mendel ने choose किया था 7 different types of contrasting traits को for hybridization experiment, ठीक है। 7 different traits है, लेकिन total अगर मिला लेंगे तो total तो 14 हो जाएगा। 7 over here and 7 over recessive trait, 7 dominant का trait, 7 आपका recessive का trait, making it a total of 14 traits in total। तो ये हो जाएगा मेंडल ट्रेट्स के बारे में ना। सो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यू कैन सी अगेन, यहाँ पे एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे कि स्टेम का हाइट है और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हुआ। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट एज वेल, ऑलराइट। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में उनको जब सेल्फ पॉलिनेशन कराना था, जैसे यहाँ पे यू कैन सी दैट व्हाट आर द स्टेप्स। यहाँ पे फिगर 5.2 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.2 में इट इज द स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन द पी प्लांट में, कि मेंडल ने एक्चुअली में कौन सा मेथड यूज किया था फॉर क्रॉसिंग, फॉर मेकिंग अ क्रॉस इन द पी प्लांट। तो उसके लिए उन्होंने व्हाट ही डिड वाज, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लावर, ये वाला फ्लावर पार्ट हो गया, यहीं पे इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये फ्लावर का पार्ट हो गया। फ्लावर के पार्ट से व्हाट ही डिड वाज, ये वाला जो साइन होता है ना, दिस साइन इंडिकेट्स फॉर द फीमेल फ्लावर। रिमेंबर, ये वाला जो साइन इंडिकेट होता है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे कई बार आएगा भी, दिस इंडिकेट्स फीमेल, क्लियर, एंड दिस साइन इंडिकेट्स मेल। ये चीज आपको जरा ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द मेल पैरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इमैस्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू देयर इज रिमूवल ऑफ एंथर्स। इमैस्कुलेशन आपको मालूम ही है कि इमैस्कुलेशन में हम पेयर ऑफ फोर्स, ये सिजर से या फोर्सेप्स से हम एंथर्स को रिमूव करते हैं। सो देयर इज रिमूवल ऑफ एंथर्स, ठीक है। और एंथर्स को जैसे ही उसके बाद रिमूव किया, फिर उसके बाद जो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, देयर विल बी द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर था बेसिकली, और बाइसेक्सुअल फ्लावर से हमने क्या किया कि एंथर को हटा दिया, और जो भी डिजायर्ड पोलन ग्रेन हमें उस पे स्प्रेड करना था, उस फ्लावर के स्टिग्मा पे डस्ट करना था, हम अल्टीमेटली उस फ्लावर का वहां पे हमने क्या किया कि वी थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, मेंडल ने क्या किया कि उस पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया उस पे। जैसे यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा, यू कैन सी। सो दिस इज द फ्लावर, इसका इमैस्कुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। ऑलरेडी होने के बाद अल्टीमेटली उसको ट्रांसफर किया गया। ट्रांसफर करने के बाद जब पॉलिनेशन हो जाएगा, तो पॉलिनेशन के नेक्स्ट वाला जो स्टेप हो जाएगा वो फर्टिलाइजेशन का स्टेप हो जाएगा। तो जो फर्टिलाइजेशन का स्टेप है, फर्टिलाइजेशन के बाद नए नए प्रोजेनीज बने, तो प्रोजेनी से अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे ये पूरा का पूरा पी प्लांट बन गया, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉस दैट ही डिड। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। मैंने आपको बोला ना, हमारा अभी फिलहाल हमें बेसिक्स जानना है, दैट मींस वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज
जो कि मेंडल ने अपने जमाने पे यूज किया था, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. नाउ यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जीन बहुत टर्म आ रहा है. व्हाट इज जीन? जीन है क्या? जीन इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी एज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी. हम लोगों ने इनहेरिटेंस देख लिया, हेरिडिटी देख ली, वेरिएशंस देख लिए. नाउ व्हाट इज जीन एक्चुअली? सो जीन इज कंसिडर्ड टू बी एज द basic unit of heredity. ठीक है, now let us take an example of one such hybridization experiment which was carried out by Mendel, where he crossed टॉल को जिन्होंने उन्होंने क्रॉस किया था, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए हैं, तो डेफिनेटली मेंडल ने जिसको क्रॉस किया था, जिन कैरेक्टर्स को लेके मेंडल ने क्रॉस किया था, दैट वाज टॉल विथ ड्वार्फ प्लांट्स. टॉल प्लांट्स का क्रॉस करवाया था ड्वार्फ प्लांट के साथ इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन को स्टडी करके. तो ये वाला जो फिगर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये इसी का रिजल्ट है. ठीक है, so what he did was he collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants to the first hybrid generation. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने के बाद फिर पॉलिनेशन करवाया, पॉलिनेशन करवाने के बाद फिर ये फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे ही, फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस्ड होगा ही. तो जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन प्रोड्यूस्ड हुआ, that is called as the first filial generation or F1 generation. तो यहाँ पे again there is a terminology which is called as F1 generation. Now what do you mean by this F? F basically stands for first filial generation or filial generation, in other words you can say. इसको generally हम filial generation कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर फीलियल जनरेशन. ठीक है, तो फीलियल जनरेशन अब ये कई तरीके के हो सकते हैं. फीलियल जनरेशन अगर फर्स्ट है तो क्योंकि ये F1 मैंने लिखा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन. क्लियर? अगर ये F2 जनरेशन होगा तो मैं इसको फिर क्या बोलूंगी? इसको मैं सेकेंड फीलियल जनरेशन बोलूंगी. ठीक, F3 है तो फिर क्या बोलूंगी? दैट इज कॉल्ड एज थर्ड फीलियल जनरेशन. लेकिन आपको उतना डीप तक नहीं जाना है. आपके कोर्स में इट इज ओनली अप टू द सेकंड फीलियल जनरेशन दैट यू पीपल हैव टू स्टडी. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो उन्होंने क्रॉस करवा करके फर्स्ट फीलियल जनरेशन को ऑब्टेन कर. नाउ मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल. तो जब ये क्रॉस करवाया था इन्होंने टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में, है ना, तो टॉल का क्रॉस जब ड्वार्फ के साथ हुआ, तो what he observed was कि F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिल रहा है, ठीक है, वो completely tall मिल रहा है. That means all tall pea plants are obtained in case of the first filial generation. ठीक है, so this is the case. So he made similar observations for the other pairs of traits also, and he found that the F1 always resembled either one of the parents. तो इन्होंने क्या basically observe किया? What he observed was that कि F जब भी, ये तो सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ किया था, दूसरे कैरेक्टर के भी साथ जब किया तो यही चीज उनको ऑब्जर्व मिली, यही चीज उनको देखने को मिला. And that the other trait of the other parent was not seen in them. मतलब ये जो recessive वाला था ना, ये जो टॉल कैरेक्टर है, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. एंड दिस ड्वार्फ कैरेक्टर इज द रिसेसिव कैरेक्टर. तो हमें जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो कैरेक्टर मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ टॉल मिल रहा है. तो मतलब सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर मिल रहा है. सो दैट वाज द केस. Mendel then self-pollinated all the tall F plants and to his surprise found out that in the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf. The character which was not seen in the F1 generation was now expressed. अब फिर उन्होंने क्या किया? इसका उन्होंने करवा दिया सेल्फिंग. सेल्फिंग मतलब क्या किया? इसका उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया. F1 जनरेशन के जितने भी टॉल प्लांट्स थे ना, उसका उन्होंने पूरा सेल्फ क्रॉस करवाया. तो जब इन्होंने इसका सेल्फिंग करवाया, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड इन F2 जनरेशन,
F2 जनरेशन में जो उन्हें मिला वो टॉल प्लांट्स भी मिले along with dwarf plants. तो टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स उनको दोनों मिले, मतलब जो ड्वार्फ प्लांट F1 जनरेशन में मिसिंग था वो ड्वार्फ प्लांट अब F2 जनरेशन में वापस आ चुका है. सो दैट वाज द की थिंग दैट ही ऑब्जर्व. ठीक है, और यही इनके एक्सपेरिमेंट का कहीं ना कहीं बेसिस बना था. ठीक है, so you can see that Mendel then self-pollinated and it was now expressed. यहाँ तक देख लिया था. Now the proportion of the plants that were dwarf are 1/4 in the F2 plants, while 3/4 in the F2 plants were tall. मतलब 1/4 का proportion था. मतलब अगर 4 हैं तो उसमें से 1/4 proportion जो है वो dwarf का था and 3/4 proportion tall का था. ये जब मैं आपको पूरा क्रॉस करूंगी तब समझ में आएगा बेटर. ठीक है, तो the tall and dwarf plants were identical to their parental type and did not show any blending. तो फिर ये भी देखा कि ये जो tall and dwarf plant है ना, इनमें किसी भी तरीके से कैरेक्टर का ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है. मतलब कैसा, जैसे ये हो गया, मान लीजिए जैसे कि अगर tall plant है और dwarf plant है, ऐसा समझिए, तो हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिले इससे जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिला ना, उनमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ. ऑफस्प्रिंग्स में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ. ब्लेंडिंग का मतलब क्या? ब्लेंडिंग का मतलब ये कि हमें या तो सिर्फ टॉल ही मिले या तो ड्वार्फ मिले. कोई भी प्लांट हमें ऐसा नहीं मिला जो मीडियम हाइट का था. ब्लेंडिंग का मतलब क्या? ब्लेंडिंग तो तब होता जब टॉल एंड ड्वार्फ मिल करके हमें एक या मेंडल को बेसिकली एक मीडियम हाइट का प्लांट मिलता. लेकिन यहाँ ऐसा तो कुछ था ही नहीं. यहाँ पे तो कोई ब्लेंडिंग ही नहीं हुई थी. या तो सिर्फ कंप्लीटली टॉल था या तो कंप्लीटली dwarf था. There was no pea plant that was medium heighted plant. ठीक है, तो no medium height plants, medium height pea plants. तो इसी से फिर पता चला कि जब भी क्रॉस करवाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में, तो कैरेक्टर्स कभी भी ब्लेंड नहीं करते. जिन भी कैरेक्टर को हम यूज करते हैं ना, वो कैरेक्टर कभी भी ब्लेंड नहीं करते. ब्लेंड नहीं करते कहने का मतलब कि वो आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे. उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, उनका जो अपना इंडिविजुअलिटी है उस कैरेक्टर का, वो कैरेक्टर का अल्टीमेटली रिटेन हो रहा है. सो दैट वाज द की थिंग जो कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था. सो दैट इज ऑल. दैट ऑफस्प्रिंग, इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग. दैट इज दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स वर आइदर टॉल और ड्वार्फ. None of them were inheriting the character in between, or none of were in between the height. मतलब कि ऐसा नहीं कि उन दोनों में से कोई बीच का हाइट मिला होगा. So this is the case. तो ये इनका एक्सपेरिमेंट्स में ये बेसिकली ऑब्जर्व हुआ है. So similar experiments were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits were observed in the F1 generation, while at the F2 generation both the traits were observed in a proportion of 3:1. जो मैंने आपको 1/4 and 3/4 वाला बताया था वही है चीजें. And again the characters जो है वो they did not show any blending either at the F1 character or in the F2 stage, you can say. ठीक है, तो ये एक बेसिक्स है जो उनके you can say उनके एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया था, एंड टू अ वेरी डीप एक्सटेंट बोल सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स में टॉल लिया गया जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया आपको, और यहाँ पे ड्वार्फ लिया गया. ठीक है, दोनों को की क्रॉसिंग कराई गई तो अल्टीमेटली हमें F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट मिला. क्लियर हो गई बात? टॉल प्लांट का फिर मैंने क्या किया था? सेल्फिंग किया था. दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन किया था मैंने. यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर सेल्फिंग किया. सेल्फिंग का मतलब ये होता है कि टॉल को टॉल से ही हम क्रॉस कर देंगे. तो जब मैंने इसका सेल्फिंग किया तो हमें कुछ जो F2 जनरेशन में, दिस इज बेसिकली द F2 जनरेशन, ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द F2 जनरेशन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर. तो F2 जनरेशन में जो हमें कैरेक्टर्स मिले थे वो टॉल 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 एंड ड्वार्फ मिला. मतलब ये जो है प्रोपोर्शन, ये 3/4 का प्रोपोर्शन हो जाएगा, और ये जो है ये 1/4 को इंडिकेट कर रहा है, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना. सो रेशियो कैसा बन रहा है?
रेशियो, दैट्स व्हाई 3:1 का रेशियो बनता है. दिस मीन्स this 3 indicates all the tall plants and this 1 is indicating the dwarf one. मतलब 4 plants में से 3 tall और 1 dwarf निकला. ठीक है. And this is the diagrammatic representation of the monohybrid cross that we have done. यही आपका, क्योंकि inheritance of one gene का हम लेके कर रहे हैं, तो एक जीन का inheritance that is called as monohybrid cross. Just a moment. मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रॉस भी दिया होगा, so you can have that thing as well. Okay, but today we are going to see, as we are going to study only the basics. तो क्रॉस हम कल देख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, बट यहाँ पे कुछ बेसिक्स हम देख लेते हैं. जीन के बारे में डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. So based on the above observations, Mendel proposed that something was being stably passed down, unchanged from parent to offspring through the gametes over the successive generation, and he called these things as factors, and now we call them as genes. तो genes के बारे में मैंने आपको already बता दिया था that these are the basic unit of heredity, which is also called as factors, जिसको हम factors भी बोलते हैं, क्योंकि यही gene pass on हो रहा है from one generation to the another generation. So therefore the genes are called as the unit of inheritance. Clear? Now, they contain the information that is required to express a particular trait in an organism. Definitely, भाई ये basic unit है, information carry कर रहा है from one generation to the next. So that's why it is very, very important, you can say. Genes ultimately code for a pair of contrasting characters that is called as allele. They are slightly different forms of the same gene. So genes में और alleles में difference होता है. Alleles जो होते हैं, these are basically called as called as one or more alternating forms of a gene. So this is called one or more alternating forms of a gene. ठीक है, मतलब जीन के ही एक या एक से ज्यादा फॉर्म, रूप जिसको हम बोल सकते हैं. ठीक है. सो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके क्या फॉर्म्स हो सकते हैं एक से ज्यादा. एक तो होता है डोमिनेंट अलील और दूसरा होता है रेसेसिव अलील, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है दैट व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रेसेसिव. मतलब ऐसा अलील जो कि एक्सप्रेस होगा तो वो डोमिनेंट होगा, और ऐसा अलील जो कि एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, that will be your recessive allele. All right. Now, if we use the alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used to express the trait at the F1 stage, and the small alphabet for the other trait. जैसे कि for example यहाँ पे आपका दिया है कि अगर हम let us just consider the character of height of the plant. ठीक है. अगर मैं example ले लूँ height of the pea plant. ठीक है. तो हाइट ऑफ पी प्लांट अगर हम लेंगे तो उसमें जो हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आया था वो टॉल का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ड्वार्फ के साथ आया. टॉल को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड ड्वार्फ को हम उसी लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे बट स्मॉल लेटर से, टी से. So you can see the character of the height, T is used for tall and small t is used for dwarf. ठीक है. And T, capital T and small t are the alleles of each other. Hence, in plants, the pair of alleles for height would be this, this, or this. Mendel also proposed that in a true breeding, tall or dwarf pea variety, the allele pair of genes for height are identical or homozygous. That can be either this or non-identical or homozygous भी हो सकते हैं, heterozygous भी हो सकते हैं. मतलब ये जो टॉल प्लांट होगा जो कि डोमिनेंट होगा उसको हम हमेशा कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमेशा पेयर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इट इज मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल टी. एंड इसको भी हम क्योंकि पेयर में रिप्रेजेंट होगा तो इसको हम मोर एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेंगे एज स्मॉल टी. ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा. इसमें आप जो कि देख सकते हैं. अब इसमें जो कि क्योंकि ये वर्ड यूज किया हुआ है अबाउट द होमोजाइगस एंड अबाउट द हेट्रोजाइगस,
एंड जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। पहले ये टर्मिनोलॉजीज जो है कुछ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो कैरेक्टर्स जो कि एक्सटर्नली विजिबल होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट आर द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ योर्स, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे दैट आई हैव अ ब्लैक हेयर, देन आई हैव टू आईज, देन आई हैव अ सिंगल नोज और नॉस्ट्रिल, देन आई हैव अ सिंगल माउथ, है ना। ये सारे एक्सटर्नल फीचर्स आपको दिख रही हैं। तो जो भी एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक, उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। So the external visible characters in an organism. क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे। जैसे अगर मैं किसी प्लांट को देखूं, जैसे अगर मैं पी प्लांट को देखूं, तो पी प्लांट की अगर मैं हाइट ले लूं, ठीक है, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइट ऑफ अ पी प्लांट, तो उसको मैं कैसे बोलूंगी? उसको भाई मैं ऐसे बोलूंगी कि या तो वो टॉल है या तो वो ड्वार्फ है, ठीक। तो टॉल या ड्वार्फ हो जाएगा। दिस इज द फिनोटाइप। बट व्हाट अबाउट द जीनोटाइप? जीनोटाइप जो होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करता है। दैट व्हाट इज द जीन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो दिस इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन एन इंडिविजुअल, और यू कैन से इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट को ही ले लें, मान लो, तो हाइट में फिनोटाइप आपका क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक। अगर मैं जीनोटाइप को कंसिडर करूंगी यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? कैपिटल टी से जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दैट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड योर फिनोटाइप। अब इसमें होमोजाइगस क्या है और हेटेरोजाइगस क्या है? होमोजाइगस का मतलब हो जाएगा जब पेयर ऑफ अलील्स सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो कैपिटल टी मैंने मेंशन किया, 3 कैरेक्टर्स इसमें बताया हुआ है, एक ये और एक ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जब क्रॉस हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो बेसिकली अब अभी बेसिक समझिए। तो इसमें अगर आप जैसे देखेंगे तो इसमें होमोजाइगस में हो जाएगा जब सिमिलर पेयर ऑफ एलील्स को कैरी करेगा, ठीक है। अ कैरेक्टर व्हिच इज कैरिंग अ सिमिलर पेयर ऑफ एलील्स। तो सिमिलर पेयर ऑफ एलील्स कहाँ पर है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। तो इन दोनों को हम क्या कंसिडर करते हैं? होमोजाइगस। क्योंकि होमो का मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलर, ठीक। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तो डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? हेटेरोजाइगस, व्हिच मींस dissimilar pair of alleles. Pair of, तो ये होता है डिफरेंस, ठीक। तो इट कैन बी आइदर होमोजाइगस, तो अलील जो होता है इट कैन बी आइदर होमोजाइगस और इट कैन बी आइदर हेटेरोजाइगस। तो इससे हमें ये पता चला कि आपका जो डोमिनेंस वाला केस है, ठीक है, डोमिनेंसी वाला जो केस होता है उसमें होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों की एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन जो रिसेसिव केस होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस का ही एप्लीकेबिलिटी होगा, और ये चीज हम क्रॉस के थ्रू पढ़ पाएंगे एंड दैट टू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ that as Mendel found the phenotype of the F1 heterozygote this to be exactly like that parent in the appearance,
he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other. That means in the F1 generation. And hence it is called as the dominant. Dominant के बारे में already बता दिया है मैंने आपको. And जो कि नहीं express कर पाएगा, suppress हो जाएगा, तो उसको हम recessive character consider करते हैं. ठीक है? So this is that. तो उस केस में हमारा tallness, dwarfness और वो सारी चीजें जो होती हैं वो explain होती हैं. Clear? So this is all about for your today's session, जिसमें कि हम लोगों ने पूरे basics पढ़े and सारे terminologies को study किया. In your next lecture, we will all be discussing about the पहले monohybrid cross को पूरा draw करेंगे, देखेंगे, and we will also be discussing about some of the variations or deviations from the monohybrid cross as well. वो भी study करेंगे. All right. Thank you very much.